Hello students, welcome to the video lecture number 6 on the magnetic effect of the current. In the previous video lecture we discussed about the Biot-Savart law, its application, Ampere circuital law and its application. Two applications we discussed, solenoid and toroid, and two video lectures on the numericals on the Biot-Savart law and Ampere circuital law. And in the last video lecture we discussed about the charge placed in a electric and magnetic, they experience the force, and that force is known as a Lorentz force. And in that lecture we also discussed about the current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force, and the force experienced by this current carrying conductor in a magnetic field, this force experience, this equal to F is equal to I L this is ILV sin theta this force experience equal to F is equal to I, this is L B sin theta. I is the current. When current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences the force. ये part पढ़ा. And the Lorentz force, when charged particle is placed in a magnetic field, it experiences the force Q is equal to V cross B. ये एक part पढ़ा. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि when this current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. ये पार्ट अगर हम इसको देखते हैं तो दिस F इक्वल टू दिस नोन एज ए लॉरेंस फोर्स, सो द Q VB साइन ऑफ ए क्या आएगा ये थीटा. व्हेन फोर्स इज ए मैक्सिमम, फॉर द मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स Q इज इक्वल टू VB एट थीटा इक्वल टू कितना आता है 90 डिग्री, एंड फोर्स विल बी ए मिनिमम या जीरो when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. ये भी देखा आर्बिट्रेरी एंगल के लिए देखा, परपेंडिकुलर जाता है तो अगर V इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पैरेलल जाता है तो क्या होता है, ये सब बातें हमने यहाँ पढ़ा. लेकिन इसमें से एक बात रह गया कि वो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस फोर्स F इक्वल टू दिस इज ए BQV साइन ऑफ ए थीटा, BQV साइन ऑफ थीटा, सो V इक्वल टू F डिवाइड बाई BQ साइन थीटा. अगर इसका यूनिट देखेंगे तो फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, और मैग्नेट हमें निकालना है. ओके, ये नहीं निकालना, ये V यहाँ आएगा और हमें निकालना है एक्चुअली B का यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का. सो मैग्नेटिक फील्ड B दिस इक्वल टू F डिवाइड बाई Q V साइन ऑफ ए थीटा. ये हो गया फॉर्मूला. अब B इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, और चार्ज के लिए कूलम, लेकिन कूलम नहीं यहाँ यूज़ करेंगे. Q इज इक्वल टू IT होता है, Q इज इक्वल टू IT, चार्ज का कूलम, IT का I का एम्पियर, और ये टाइम का सेकंड. तो यहाँ मैं ये के लिए लिख रहा हूँ एम्पियर सेकंड. और V का क्या होता है, V इज ए मीटर पर सेकंड, और इसके लिए जो एंगल है तो इसका कितना इन 1. सो दिस B मैग्नेटिक फील्ड N, और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, A डिवाइड बाई ये आएगा M. सो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. तो ये हो गया इसका. दिस इज इक्वल टू द टेस्ला. टेस्ला इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला. टू honor to the great scientist, the unit of the magnetic field is given as a Tesla, symbolically written as a capital T,
or this is the Tesla. Then we'll discuss about the next then force on the force between the two parallel infinitely long current carrying conductor. So what is the force? So the AB is a infinite long current carrying conductor. This is the infinite long. तो मैं इसे यहाँ डॉट से दिखाता हूँ. ये भी infinitely long conductor. This is the CD. They are carrying the current. This is it carries the current I1, and this carries the current. This is the carries the current. This is the I2. They are carrying the current I1 and I2 separated by a distance R. यहाँ से कितना? And they are parallel to each other. They are not placed in the magnetic field. There is no magnetic field. There is a not placed in magnetic field. लेकिन magnetic field भी, but लेकिन when conductor placed in a magnetic field, it experiences the force that conductor equal to ILB sin of theta. ये हमने पढ़ा प्रीवियस आर्टिकल में. तो इसका यहाँ यूज करेंगे. तो लेकिन ये लिखा रखा था जब मैग्नेटिक फील्ड में वो कंडक्टर रखा तो ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ILB sin थीटा. लेकिन यहाँ ये these two conductors are not placed in a magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे, जस्ट एक दूसरे को पैरेलल रखा है. तो ये क्या करता है? तो ये जो कंडक्टर्स हैं ये फर्स्ट कंडक्टर है. मान लो ये दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर AB. When current passes through this conductor I1, it produces the magnetic field around it. उसके सराउंडिंग में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अकॉर्डिंग टू दी बायट-शवर्ट लॉ हमने इसका पढ़ा है. और अगर ये कंडक्टर R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस करता है तो उसका वैल्यू हमने पढ़ा था. द करंट कैरिंग कंडक्टर AB is a current carrying conductor. AB is a current carrying conductor, produces a magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? मान लो दिस इज द B1 इक्वल टू V0 I डिवाइड बाई इसका फॉर्मूला है 2π R डिस्टेंस. करंट कितना है? I1. सो दिस AB प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एट एन R डिस्टेंस. और व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड? ये फील्ड का डायरेक्शन क्या है? तो ये फील्ड का डायरेक्शन हम यहाँ लिखेंगे, एंड डायरेक्शन इज direction of this field ये फील्ड का डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड. अभी कुछ बच्चों का ये कंप्लेंट था कि ये ठीक से दिखाई नहीं देता है, थोड़ा ब्लर्ड इमेज दिखाई देता है. बच्चे थोड़ा सा सेटिंग में जाकर या क्वालिटी में जो देखो, क्वालिटी में ये 360 क्वालिटी में वीडियो देखो तो तुम्हें ये जो ब्लर्ड इमेज जाता है वो दिखाई देगा ठीक से, क्योंकि लो क्वालिटी में देखेंगे तो ये इमेज क्लियर नहीं आएगा. तो डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज फाइंड आउट बाय यूजिंग दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इससे लेफ्ट हैंड रूल, इसका डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे. आप देखो लेफ्ट हैंड रूल क्या है? व्हेन 3 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड, 4 fingers, सेंटर फिंगर एंड थंब होल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ऐसा रखेंगे, 4 finger in the direction of the magnetic field, central finger in the direction of the current, then force experience in the direction of a thumb. This is the Fleming's
लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया किसी ने, ए बी कंडक्टर, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करते फ्लेमिंग का, तो ये इसके लिए फोर्स एक्सपीरियंस के लिए आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, नॉट अ फ्लेमिंग, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एंड दिस फोर्स डायरेक्शन यहाँ लिखते हैं। फोर्स डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसका डायरेक्शन के लिए क्या है, राइट हैंड थंब रूल। अब क्या फाइंड करना है हमें, डायरेक्शन फाइंड करना है। सो दिस कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कैसा, इसके सराउंडिंग में। हमने एम्पियर सर्किट लॉ से भी देखा। तो ये इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसका डायरेक्शन यहाँ क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा और इनवर्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड thumb rule. Thumb in the direction of the finger, direction of the current, then this four curved finger is the direction of the magnetic field. हमने ये right hand thumb से पढ़ा। तो ये कैसा आएगा, दिस इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। सो मैं यहाँ किससे दिखाऊँ, इसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये मैं यहाँ इसको क्रॉस से दिखाऊंगा, तो ये यहाँ आएगा, ये दिस इज द क्रॉस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्रॉस से दिखाऊंगा मैं इसे। तो ये परपेंडिकुलर टू दिस है। और इस मैग्नेटिक फील्ड जो पहले कंडक्टर ने ए बी ने प्रोड्यूस किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में सी डी रखा। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए बी is B1, is B1, and in that field the conductor, कौन सा conductor CD is placed। तो कैसा है CD परपेंडिकुलर है वो ये मैग्नेटिक फील्ड को। तो थीटा एंगल कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस विल एक्सपीरियंस द फोर्स, कौन CD सेकंड कंडक्टर है, तो हम इसको F2 लिखेंगे, इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ILB से। लेकिन इसमें से कितना करंट जा रहा है, I2, और लेंथ कितना है, L है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1, और साइन कितना है, साइन इज ए 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। तो दिस इक्वल टू, तो द फोर्स एक्सपीरियंस दिस F2, दिस इक्वल टू, अब मैं B1 का वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से। तो μ0 I1 डिवाइड बाई 2πr, ये B1 का वैल्यू हो गया, और इनटू दिस इज I2 और ये L, और साइन थीटा क्या होता है 1। सो F2 डिवाइड बाई L इक्वल टू μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2π और ये R। सो दिस इज I1 I2, दोबारा लिख रहा हूँ इसको, ओके, इक्वल टू μ0 I1 I2 divided by 2πr. So this is the magnetic field produced by the first conductor, and in that field this second conductor is placed, so it is experience the force equal to μ0 I1 I2 2πr। और इसका जो डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन, तो हम इसका डायरेक्शन यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड 3 फिंगर्स of a left hand, 4 fingers, central finger and thumb hold mutually perpendicular to each other. 4 finger in the direction of magnetic field. This is the finger in a central finger in the direction of current. Then force experience in the direction of thumb. अगर ये कंडक्टर है CD, तो इसका करंट कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जो परपेंडिकुलर टू द पेपर है, इस तरह डायरेक्शन में। तो थंब कहाँ है, यहाँ। तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द F2 डायरेक्शन ऑफ ए F2, यह डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली
Similarly, okay, this is a similarly CD also produces a magnetic field. इसकी वजह से ड्यू टू I2 की वजह से CD भी क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा. कितना फोर्स? तो CD विल प्रोड्यूस ए फोर्स दिस इक्वल टू कितना, CD also produces a magnetic field V2 due to the I2. so कितना आएगा, V2 is equal to अगेन यहाँ μ0, उसमें से करंट कितना जा रहा है I2 और डिस्टेंस कितना 2 पाई आर. कहाँ ये प्रोड्यूस करेगा, मान लो यहाँ प्रोड्यूस करता है. दिस इज ए V2 एट एन डिस्टेंस. ये कंडक्टर R डिस्टेंस से R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ, ऐसा ही. सो दिस V2 इक्वल टू दिस वैल्यू. और इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रखा है, सेकंड कंडक्टर रखा है. तो सेकंड कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, अगेन ये अकॉर्डिंग टू द एम्पियर ये इस तरीके से, और ये डायरेक्शन रहेगा. अगर ये इनवर्ड है तो ये आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि बोथ फील्ड नॉट इन द सेम डायरेक्शन. एक फील्ड एक साथ दो फील्ड एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे. तो ये इनवर्ड है तो ये क्या आएगा, आउटवर्ड. तो दिस फोर्स एक्सपीरियंस एंड फोर्स एक्सपीरियंस, सेम फोर्स सेम डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू is a same, that it will experience the force. This is F divided by L equal to V0 I1 I2 divided by 2 pi r. and direction of this force, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और करंट कहाँ जाता है, अप जाता है. अगर ये डायरेक्शन हम देखेंगे, ये करंट का डायरेक्शन अप, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. तो ये अगर यहाँ देखेंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड मेरे तरफ, और ये करंट का डायरेक्शन अप है. और तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन रहेगा फोर्स का, ये रहेगा. दिस इज द F1. so the F1 and F2, these two forces are equal and opposite direction, equal and opposite direction. तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसका मतलब क्या है, दोबारा समझाते हैं. अगर ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, पैरेलल है, और उनका डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस r है, इसमें से करंट I1 जाता है, इसमें से करंट I2 जाता है. तो I1 करंट की वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है B1, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर CD को रखा, तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्योंकि हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज current carrying conductor experiences a force when it is placed in a magnetic field. When conductor carrying the current I placed in a magnetic field, it experiences the force F is equal to ILB sin theta. ये हमने पढ़ा है. तो इसी तरीके से इसने जो ये भी ने जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस मैग्नेटिक फील्ड को में CD को रखा, तो CD क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मैंने यहाँ लिखा, दिस इज F2 I2 L B1 साइन ऑफ थीटा. B1 कितना, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इतना, तो इसमें फोर्स इतना प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करना है. इसी तरीके से CD is also carrying the current I2 and it produces the magnetic field कितना, B2, और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा, ये भी को रखा, तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो दिस इज F डिवाइड बाई L. B2 ने मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया एट एन डिस्टेंस, दिस है कितना, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, दिस वैल्यू. तो इसका डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, तो इसका डायरेक्शन ये दिशा में और इसका ये दिशा में, F2. So these two forces equal and opposite, they will exert a attractive force. So ये सिंपल आर्टिकल था, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए.
आता है फोर्सेस बिटवीन द पैरेलल इनफिनिट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ हाँ, यहाँ अगर समझाना चाहते हैं तो मैं दोबारा से एक बार से पी क्यू एक कंडक्टर है और क्यू आर एक दूसरा कंडक्टर है। तो इसमें से कितना करंट जाता है I1, और इस जो करंट I1 है इसके वजह से r डिस्टेंस से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस V1 इक्वल टू V0 I, करंट कितना पास करता है I1 डिवाइड बाई क्या आएगा 2πr। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर CD रखा है, ESR रखा है। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज द सेकंड कंडक्टर, इसलिए F2 क्या लिखो, F2 ILB साइन ऑफ थीटा। अब I कितना है इसका I2 है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है V1, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर, इसलिए थीटा इक्वल टू मैंने 90 लिया। तो F2 इक्वल टू V1 का वैल्यू यहाँ रखता हूँ V0 I1 डिवाइड बाई 2πr इंटू I2 इंटू क्या आएगा L। ये L यहाँ जाएगा इस डिवाइड, तो ये आएगा दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ये दिस कंडक्टर when it is placed in a magnetic field of the conductor PQ। इसी तरीके से दिस ESR conductor also produces a magnetic field। ये भी क्या करेगा, produces a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड हम इसको लिखेंगे B2, कितना V0 I, उसमें करंट कितना जाए I2 डिवाइड बाई 2πr। किस कौन सा पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ B2। और ये मैग्नेटिक फील्ड में इसने जो ये ER या ESR ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया B2, उस फील्ड में एक PQ कंडक्टर रखा, तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा आउटवर्ड। तो दिस इज द आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन और प्लेन ऑफ पेपर, हम लिखेंगे इसको प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो कंडक्टर में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो I1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है V2, और थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। सो दिस F डिवाइड बाई L, कौन सा फर्स्ट कंडक्टर है इसलिए ये लिखा। P2 का वैल्यू V0 I2 ये I1 ये वैल्यू रखा मैंने, और डिवाइड बाई दिस इज 2πr। सो दिस इज द F1 इक्वल टू क्या है F2, बोथ आर इक्वल, F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल। बट इनका डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, तो ये डायरेक्शन इसका कहाँ आता है, F1 यहाँ आता है, और F2 कहाँ आता है, दिस इज F2 यहाँ आएगा, और F1 कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर। इस तरीके से ये डेरिवेशन है। ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये ध्यान रखना है ठीक से। चलो और इसके ऊपर कुछ जानकारी इसमें, तो यही एक्सप्रेशन इसका इसके ऊपर आता है। और अब देखो ये अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दे कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रही है, इसका करंट यहाँ अपवर्ड, इसका भी करंट अपवर्ड, सो दे विल क्या लिखा, अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ये अट्रैक्ट होगा। और ये करंट इसका ऊपर जा रहा है, इसका करंट कहाँ जा रहा है नीचे, तो दे आर कैरिंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन दे विल बी रिपेल फ्रॉम ईच अदर, क्या होगा, रिपेल हो जाएंगे। तो ये थ्योरी इसका, तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। उसके बाद हाँ, डेफिनेशन ऑफ ए एम्पियर को डिफाइन कराया, डिफाइन दी एम्पियर। जब हम 11th क्लास में थे तब हमने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट था, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर,
और डिफाइन द एम्पियर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमने अभी क्या देखा, द फोर्स ऑफ ए कंडक्टर F1 डिवाइड बाई L इक्वल टू μ0 I1 I2 डिवाइड बाई कितना आता है 2 पाई r। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये अगर करंट उसमें से हम अश्यूम करते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर। दे आर सेपरेटेड बाई दिस डिस्टेंस। ये दो कंडक्टर है, ये दो कंडक्टर है और ये पैरेलल भी है और सेपरेशन कितना है R इक्वल टू 1 मीटर एंड करंट कैरी करता है 1 एम्पियर। ये भी करंट कितना कैरी करता है 1 एम्पियर। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आएगा दिस इक्वल टू 4 म्यू का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 का 1 ये 2 और ये 2 पाई इंटू R कितना है 1 मीटर। सो दिस इक्वल टू F1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ये लेंथ, दिस इज ए न्यूटन पर मीटर। ये इतना फोर्स आता है। तो ये डिफाइन द एम्पियर। The current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere when two parallel conductor separated by कितना separated by a distance 1 meter and they exert a force कितना फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देन current in a conductor is a 1 ampere each. So this is the definition of a ampere. चलो आगे और देख सकते हैं। तुम्हें डेफिनेशन इसका एक्सप्लेनेशन डिफाइन द एम्पियर। So this is when 1 ampere is that current which passes through the two parallel current carrying conductor infinite length and placed 1 meter apart in a vacuum causes the conductor experience the force 2 into 10⁻⁷ Newton per meter। एंड करंट अगर एक दिशा में एक ही डायरेक्शन में जाता है तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। दोनों करंट अपवर्ड इसलिए इनवर्ड डायरेक्शन में करंट रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और एक अपवर्ड करंट है तो ये क्या इनवर्ड और डाउनवर्ड करंट है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये भी फील्ड पैटर्न ध्यान रखना इसका। यानी इसमें एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैंने दिया है यहाँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स 10 ampere and 20 ampere. This is the 20 ampere and 30 ampere carrying the current in a opposite direction. Find the magnitude of magnetic field at a point P, Q and R. उनका distances भी दिया है यहाँ और मैंने यहाँ एक hint दिया किस तरीके से find करना है। So think about the direction and solve this question. What is the magnetic field at a point P? This is the point Q and this is the point R. तो इसको सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चलो दूसरा एक आर्टिकल पढ़ते हैं और एक वन मोर आर्टिकल। द टॉर्क एक्सरसाइज द लूप इज अ प्लेस इन ए, हमने अभी पहले देखा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस द फोर्स दिस F इक्वल टू ILB साइन ऑफ ए थीटा और डायरेक्शन कैसा द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये पता है। अब यहाँ एक रेक्टेंगुलर ग्रुप रखा जिसका P, Q, R एंड S है। कहाँ रखा ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा और डायरेक्ट दिस इज इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस साइड ऑफ दिस इज ए लेंथ इज ए L और दिस इज ए suppose breadth is a B and direction of magnetic field is in this direction. This is the magnetic field B. It makes the angle theta with the normal to the
plane of the coil, and this carries the current I through this coil. Coil carries a current I. This is the I current is a passes through this a coil, and this is the axis of a rotation. This is the axis of rotation, and direction of the magnetic field is this way. The magnetic field, this is the direction of a magnetic field. This is the direction of a magnetic field. So such this place in a magnetic field, such rectangular coil is placed in a magnetic field. So this an arm of the rectangular coil carrying the current I, so it will be experience the force. This is the current direction, so it will experience this is the arm कौन सा QR and ES experience the force equal and opposite direction, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. इसका फोर्स अपवर्ड रहेगा और इसका फोर्स कहाँ रहेगा, दिस इज द डाउनवर्ड. so they are equal value and opposite direction, equal and opposite direction according to किसके वजह से, this is Fleming's left hand rule. Fleming का लेफ्ट हैंड रूल से कैसे देखो, इफ करंट इज कैरिंग इन दिस डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, दिस लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट डायरेक्शन, एक करंट ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ये डायरेक्शन में जाता है, तो ये फोर्स कहाँ ये करता है अपवर्ड. इसी तरीके से करंट का ये उल्टा करेंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, ये डायरेक्शन सॉरी, और करंट का ये डायरेक्शन, तो दिस विल बी है ना डाउनवर्ड. तो इक्वल एंड अपोजिट ये दोनों एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स, तो देयर कैंसल ईच अदर, बट दिस आर्म PQ experience the force in a inward. ये कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन ए इनवर्ड डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ, और ये कहाँ करेगा, ये बाहर की तरफ. सो इनवर्ड डायरेक्शन and this SR experience force in outward direction. So this is the outward direction कैसे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब ये लेफ्ट हैंड रूल के लिए देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहाँ जाएगा पीछे, ये दिस विल बी इन द डायरेक्शन इनवर्ड जाएगा. सो जब ये करंट का डायरेक्शन हो गया नीचे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो ये जो थंब है, तो ये इस डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, मतलब ट्विस्टिंग फोर्स. द टॉर्क इक्वल टू द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूसेस ए क्या आएगा टॉर्क. तो टॉर्क कितना, तो हम वो फाइंड करेंगे. सो दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसके ऊपर, इन आर्म PQ एंड कौन सा आर्म है RS, प्रोड्यूसेस द टॉर्क. क्या करेगा, प्रोड्यूसेस ए टॉर्क. टॉर्क मतलब इट्स रोटेशनल फोर्स, क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करेंगे. अगर ये रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है तो टॉर्क होता है, टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
अब फोर्स कितना है, फोर्स लिखो, हम लिखते हैं आई आई कितना, एफ इज इक्वल टू, दिस इज ए आई एल बी, आई एल, दिस इज ए बी साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आई एल बी साइन ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है देखो इसका, अगर ये मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ लेते हैं ये, दिस इज ए पी क्यू, क्यू, और ये हो गया आर, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये डी, ये आर यहाँ, ये जो पी क्यू है, क्यू आर है, इसको रखा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये, दिस इज द थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर एन। साइन ऑफ थीटा लेंगे यहाँ, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाई आर एन डिवाइड बाई क्या आएगा, डी। सो आर एन इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, तो आर एन इक्वल टू ये आएगा, ये साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये हो गया आर एन, और दिस इक्वल टू क्या है, ये साइन ऑफ थीटा। सो दिस ए इंटू बी, सॉरी, ए इंटू यल, दिस इक्वल टू एरिया। तो इसको मैं लिखा टॉर्क इक्वल टू आई बी, क्या बचा है, आई बी, और ये एरिया इंटू साइन ऑफ थीटा। तो एक साइन थीटा, तो आई दिस टॉर्क टू इक्वल टू दिस द एरिया, और ये कितना है, आई है, तो दिस इज द एरिया इंटू आई क्रॉस क्या होगा देखा, ये बी, आई टॉर्क इक्वल टू एरिया क्रॉस ए। इफ दिस हैविंग ए n number of turns, that it will be n I a b साइन ऑफ थीटा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये टॉर्क इक्वल टू, अगर इफ इट इज n number of turns, तो n I a साइन ऑफ थीटा। सो दिस टर्म is known as a magnetic moment. The magnetic moment equal to n I into a, and this denoted by m। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रखा, तो दिस इक्वल टू क्या आएगा बोलो, दिस इज ए m क्रॉस क्या आएगा, b, m क्रॉस b, दिस नोन एज ए टॉर्क। अगर टॉर्क मतलब ट्विस्टिंग फोर्स होगा तो ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। सो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर और प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, दिस इज द डेरिवेशन एक्चुअली, या फिर एक बार पढ़ लो इसको अच्छी तरह से। दिस इक्वल टू इच आर्म इक्वल टू इतना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और दिस टॉर्क इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स m क्रॉस दिस इज बी, आई इज इक्वल एम इज इक्वल टू आई इंटू ये, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं रखा तो यही रखा, तो दिस इक्वल टू कॉइल रोटेट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज ए torque. When torque is a maximum, sin theta is a 90. When torque is a 0, when they say torque theta equal to 0, torque equal to 0, ये यहाँ से आएगा इसी तरीके से। Then तो आज का क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जैसे इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो पहले पढ़ा किसके बारे में, लॉरेंस फोर्स के बारे में, लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इसके बारे में पढ़ा, तो यूनिट हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ऐसे दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, अगर वो पैरेलल रखे हैं
मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, खाली पैरेलल रखे तो पहले ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसमें सेकंड है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेकंड भी करंट क्या नहीं करेगा, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसका फर्स्ट वाला है तो एक्सपीरियंस दी फोर्स, वो पढ़ा। उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल place in a magnetic field they experience the torque and the torque equal to कितना, the torque equal to n big m cross b and m is the magnetic moment। तो ओके, ये ध्यान रखो, फिर से एक बार रिवाइज करूँगा मैं इसे, तब तक के लिए यही रुकेंगे। थैंक यू।